Let us see the next question. From following information, you are required to calculate arbitrage if possible. So you are required to identify the opportunity of arbitrage. Spot price of equity share is 31, exercise price of the option is 30, call premium is 3, put premium is 2, rate of interest is 10%, time period is 3 months. This is the information given to us. Now friends, over here there are certain other methods also by which you can identify whether arbitrage is possible or not. For example, you may make the computation that say what is the minimum call premium to be charged so that arbitrage does not exist. तो उसमें आप क्या करोगे, स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस और जीरो विच एवर इज हायर, ऐसा करके आप आंसर कैलकुलेट करोगे. स्पॉट कितना है हमारे एग्जांपल में 31, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम पीरियड कितना है 3 महीना. सो 30 डिवाइडेड बाय 1.025 और जीरो विच एवर इज हायर, ऐसा करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि मिनिमम प्रीमियम क्या होना चाहिए. अच्छा, आई होप दैट एवरीबडी इज क्लियर विद दिस 2.5%. वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है. 10% पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना, दैट इज द वे वी कंप्यूट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 months टाइम पीरियड. So 30 divided by 1.025, so 29.2683. उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 31, दैट कम्स टू 1.7317. तो ये क्या हो गया, मिनिमम कॉल प्रीमियम हो गया. एक्चुअल कॉल प्रीमियम कितना है, ज़्यादा है, सो आर्बिट्रेज डज नॉट एग्जिस्ट. रिवर्स, हम लोग मिनिमम पुट प्रीमियम भी चेक कर सकते हैं, दैट से वेदर विद दैट आर्बिट्रेज एग्जिस्ट और नॉट. इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट और जीरो विच एवर इज हायर. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस कितना है 29.2683 माइनस स्पॉट कितना है 31, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो गया. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द जीरो इज द मिनिमम पुट प्रीमियम. अच्छा चलो, यानी हम लोग ऐसा देख सकते हैं दैट से दोनों मेथड से आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है. Now this time importantly, call premium is given, put premium is given, spot is given, exercise price is given, time period is given, rate of interest given, everything is given to us. तो इस पर हम लोग क्या चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, we can check whether put call parity theorem exist or not. वो हम लोग चेक कर सकते हैं. कैसे चेक कर सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन प्रॉपर्ली, दैट से हम लोग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम प्रिवेल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक कर सकते हैं. On the left hand side we understand, say we have put premium plus spot price, and on the right hand side we have call premium plus present value of exercise price. So the amount of the put premium is given to us in the question as rupees 2. Spot price of the equity share is given as 31. So the total of the left hand side is 33. On the right hand side, the call premium is given rupees 3 plus present value of the exercise price, that is 30 divided by 1.025. So it is 3 plus 30 divided by 1.025, 29.2683. So on the right hand side it is 32.2683. क्या ये दोनों वैल्यू मैच हो रहा है?
नहीं, ये दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। एस about two values do not match, so arbitrage exist। ऐसा हम लोग आंसर लिख सकते हैं ना। somebody may have a point that सर हम लोग ये चार में से, listen carefully, पुट प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट द अदर थ्री इंफॉर्मेशन, और उसको जो पुट प्रीमियम दे रखा है उसके साथ कंपेयर करें, एंड इफ एट ऑल इट डज नॉट मैच आर्बिट्रेज एग्जिस्ट। ऐसा कंक्लूजन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अगेन ये चार में से यू कंप्यूट द कॉल प्रीमियम एज बैलेंसिंग फिगर एंड यू कंपेयर विद द गिवन कॉल प्रीमियम। अगेन ये वैल्यूज मैच नहीं हो रहा है तो आर्बिट्रेज है, ऐसा हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हो। That is the way say we can have say the working, and otherwise you can have the simple working like this to identify whether arbitrage exists or not. I request all of you to write down answer along with me. Answer for the question. In this question, sufficient information have been given so as to verify whether arbitrage exists or not. Full stop. So we are verifying whether arbitrage exists or not, comma, I'm sorry, there is a mistake on my end. In this question, sufficient information have been given so as to verify whether put call parity theorem exists or not. So we will verify whether put call parity theorem exists or not, comma, if it is not existing, arbitrage is possible, not otherwise. Write down answer. Now please write down this answer. Now write down with paragraph calculation of arbitrage. So let us have understanding that say how to make the calculation of arbitrage. Everybody is requested to pay attention. See over here what happens that say we have to do certain transactions in such a way that we have to make payment for this amount, and we are going to have receipt of this amount. That is the way we have to do certain transactions. हमको ये पे करने का हो और ये हमको रिसीव हो, ऐसा हमको कुछ करना है। क्यों ऐसा सर? लॉजिक इज सिंपल, वी हैव टू पे द लोअर वैल्यू एंड वी हैव टू रिसीव हायर वैल्यू, तो ही हमको प्रॉफिट होगा। ओके, ये पे करना है, उसका मतलब क्या हुआ? दैट से यू हैव टू बाय कॉल ऑप्शन।
ये रिसीव करना उसका मतलब क्या हुआ, यू हैव टू सेल पुट ऑप्शन। ये रिसीव करना उसका मतलब क्या हुआ, यू हैव टू सेल सिक्योरिटी इन द स्पॉट मार्केट एट द रेट ऑफ 31, और फिर ये ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। लेट अस से दैट से आज का डेट है 1 जनवरी। क्या किया जाएगा, 1 सेल सिक्योरिटी इन स्पॉट मार्केट एट द रेट ऑफ ₹31, क्योंकि वो स्पॉट प्राइस है। सेकेंड, बोरो सिक्योरिटी टू कवर अप short position in cash market. Third, purchase put option by paying ₹2। तो देखो, जो हमको पे करना था वो हो चुका। आई एम सॉरी, परचेज कॉल ऑप्शन है, परचेज कॉल ऑप्शन बाय पेइंग ₹3। फोर्थ, सेल पुट ऑप्शन and receive ₹2। सी अंडरस्टैंड केयरफुली। देखो, लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यूज था वो हमको मिलना चाहिए। कौन सा, पुट प्रीमियम तो ₹2 मिल गए, और सिक्योरिटी सेल करने के बाद हमको क्या मिला, 30, दैट इज ₹31। तो ये ₹31 हमको मिला, ये ₹2 हमको मिला, तो टोटल कितना मिला, 33। उस पर से हमने क्या किया, ये ₹30 का पेमेंट, सॉरी ₹3 का पेमेंट किया। सो आउट ऑफ 33 यू पे ₹3, तो बचा कितना, दैट इज ₹30। तो फिफ्थ, इन्वेस्ट ₹30। 30 कैसे आया, 31 + 2 - 3 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 months। तो ये ₹30 को इन्वेस्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 months। दीज आर द ट्रांजेक्शंस इन विच यू विल एंटर अपॉन ऑन 1 जनवरी। 31 मार्च, उस दिन क्या होगा, अंडरस्टैंड केयरफुली। जो आपने सिक्योरिटी सेल किया था ना, फॉर दैट यू विल हैव लायबिलिटी टू रिफंड। तो एक लायबिलिटी टू रिफंड, one share, because we had borrowed to cover up the short position। परचेज कॉल ऑप्शन, उसकी वजह से क्या होगा, you are call option holder at the end of the year। You sell put option, so at the same time you are put option seller, you had made investment, so you will have the maturity amount (30 into 2.5%), that comes to 75 paise। So it is ₹30 plus 0.75, so 30.75। Now listen carefully my further explanation। Before that, say I just have a question to all of you। Suppose the market price of the share at the end of the year is rupees, let us say 22। I want you to write in the chat box कि ये जो ट्रांजैक्शंस हमने किया उसका क्या प्रॉफिट होगा या क्या लॉस होगा। प्राइस पे ने क्या बोला आपको, 22, कौन से दिन, 31 मार्च के दिन। लेट अस सी कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स। सपोज द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹22।
कॉल पुट, देखो एक्सरसाइज प्राइस क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 22 इज नॉट एक्सीडिंग 30, तो कॉल एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, 22 इज लेस देन 30, पुट एक्सरसाइज होगा हाँ होगा, ठीक है। आई एम पुट ऑप्शन सेलर, तो मैंने किसी को राइट बेचा है दैट यू कैन सेल सिक्योरिटी टू मी एट द रेट ऑफ 30, मेरे पास मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट कितना है, 30 रुपीज 75 पैसे। पुट ऑप्शन होल्डर मेरे घर पे आया, उससे बोला कि ये सिक्योरिटी लो, मुझे पैसा दो, तो मैंने बोला ठीक है भाई ये लो 30 रुपीज़, मैंने सिक्योरिटी उनसे ले लिया, तो ये पुट ऑप्शन होल्डर मेरे घर से गया, मैं कॉल ऑप्शन होल्डर हूँ और मेरे राइट एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, यानी ये भी पूरा हो गया। मेच्योरिटी अमाउंट तो मैंने लिख ही दिया है, 30 रुपीज़ 75 पैसे, जिससे मैंने सिक्योरिटी बोरो किया था उसको मैं रिफंड कर दूंगा। पुट ऑप्शन होल्डर मुझे सिक्योरिटी दे के गया है, तो वो सिक्योरिटी मैंने उसको रिफंड कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 75 पैसे। दिस इज द वे आई विल हैव अ प्रॉफिट इफ एट ऑल द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 22। सर अभी 22 नहीं, जीरो लिखो ना, जीरो लिखते हैं भाई, तो उसमें भी यहाँ पे नो ही आएगा, यहाँ पे येस ही आएगा, यहाँ पे 30.75 ही आएगा, यहाँ पे 30 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0.75। द थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस इवन इन केस ऑफ जीरो। अगेन मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, सपोज कि स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, ऐसे मैं बोल रहा हूँ विदाउट एनी रीजन 70 रुपीज़, तो उस केस में ये जो सारे ट्रांजैक्शंस है उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, आई वॉन्ट यू टू राइट दैट इन द चैट बॉक्स। जो प्राइस 70 होगा तो क्या होगा वो समझते हैं। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा हाँ होगा, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट विल रिमेन सेम 30.75। जिसको मैंने पुट ऑप्शन बेचा वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, 30.75 मैंने एज इट इज लिखा है। आई एम कॉल ऑप्शन होल्डर, सो आई हैव राइट टू बाय द सिक्योरिटी एट 30, तो मैंने क्या किया, मेरा राइट एक्सरसाइज किया, मैं खुश होकर 30 रुपीज़ में सिक्योरिटी लेके आया, फिर मैं लेके आया सिक्योरिटी, तभी ही मुझे याद आया कि मुझे सिक्योरिटी रिफंड भी करना है, तो मैंने उसको रिफंड कर दिया, तो मुझे क्या मिला 75 पैसे मिले। दैट इज द वे आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 पैसे इफ द प्राइस इज 70। प्राइस 70 की जगह सपोज सोचते हैं कि प्राइस हो गया 1000 रुपये, इवन इन दैट केस ये वर्किंग तो एज इट इज ही रहेगा, उस पर कोई भी चेंज होगा नहीं। And it results into a profit of again 75 paise. This is what we understand. If at all the spot price is 30 itself, then in that case you are indifferent whether to exercise the right or not, for call option as well as put option. तो क्या होगा, आपके पास वापस 30.75 है, आपने 30 रुपीज़ में सिक्योरिटी खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ रिफंडिंग, और आपको क्या हुआ 75 पैसे का गेन हो गया। So we understand that over here for any spot price of the security always your gain is 75 पैसे, तो अगर हर एक में आपका सेम गेन है irrespective of the price fluctuation, this is what we understand is arbitrage. And you can see over here importantly कि हर टाइम आपका परचेज प्राइस कितना है 30 है। अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला था पे करना है, तो ऑटोमेटिकली ही क्या हो गया, एक्सरसाइज प्राइस का पेमेंट हो गया। अच्छा इफ एट यू मेक अ कंपैरिजन ऑफ दिस टू, देखो 33 माइनस 32.2683, तो प्रॉफिट कितना आता है 0.7317। सो दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। यूज योर कैलकुलेटर, 0.75 divided by 1.025, so 0.75 divided by 1.025, discounted value क्या आता है, exactly 0.7317 आता है। This is what we understand.
ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने ऐसा वेरीफाई किया कि पुट कॉल पैरिटी थ्योरम है या नहीं है, नहीं है, इसलिए आर्बिट्रेज है। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको लिखवाया। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से आर्बिट्रेज का आंसर कैसे होगा, उसके लिए वी अंडरस्टैंड दैट से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन विच यू हैव टू एंटर अपॉन, जिसमें हायर वैल्यू आपको रिसीव होना चाहिए और लोअर वैल्यू आपको पे करना है। हायर वैल्यू रिसीव करने के लिए सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक शॉर्ट पोजीशन इन द कैश मार्केट, यू विल सेल पुट ऑप्शन, यू विल बाय कॉल ऑप्शन, और ऑटोमेटिकली ये आपका बाय प्राइस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड दिस इज द वे वी मेक अ प्रॉफिट। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर। Calculation of arbitrage. In that, write down transactions to be entered upon today. उसमें क्या लिखेंगे? A, sell security in spot market at the rate of ₹31. B, borrow security to cover up short position in cash market. C, sell put and receive ₹2 premium. D, buy called and pay ₹3 premium. E, इन्वेस्ट ₹30. 30 कैसे है सर? 31 + 2 - 3 at the rate of 10% for 3 months. तो आज आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस करने हैं। सिक्योरिटी सेल किया, फिर बोरो किया, पुट सेल किया, कॉल बाय किया और बाकी का पैसा इन्वेस्ट किया। उसके सामने अभी हम लोग लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्बिट्रेचर at the end of 3 months. तीन महीने बाद उनका पोजीशन क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं। उसमें लिखो ए, ये जो हमने सिक्योरिटी सेल किया उसके बाद बोरो किया, so liability to refund a stock. B, put option sale किया, so you are having a liability as put option seller, that is liability to put option holder. You are call option holder, so right to buy
security at the rate of ₹30. लास्ट में maturity amount of deposit ₹30.75. कैसे 30 प्लस 30 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12. That is the way you will have the maturity amount of deposit. तो क्या क्या ट्रांजैक्शन किया वो लिखा हमने, पोजीशन लिखा एट द एंड ऑफ द 3 months. दिस इज व्हाट्स यूर रिटर्न. और उसके बाद हम लोग लास्ट में लिखेंगे आर्बिट्रेज. जिसमें हम लोग ऐसा लिखेंगे maturity amount of deposit 30.75 less purchase price of security 30. So the resultant value 75 paise is arbitrage. Now listen carefully कि अगर प्राइस 30 से ज़्यादा होगा तो मैं मेरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करके सिक्योरिटी बाय करके रिफंड करूंगा. प्राइस 30 से कम होगा तो जिसको मैंने पुट ऑप्शन बेचा है वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा. उस केस पे भी मैं सिक्योरिटी 30 में बाय करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ रिफंडिंग. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. विथ पैराग्राफ राइट डाउन. If spot price is more than ₹30, comma, we exercise our call option to buy security, comma, for refunding. Full stop. If price is less than ₹30, we purchase security at the rate of 30 because put option holder will exercise his right. This is what we understand. So here are the certain market details, say from the for the security of the Reliance company. Spot price is 2384.05. Focusing on the exercise price of 2400. For that, say the call premium information is given to us on the left hand side and put premium information have been given to the right hand side. The call premium is 65.70, 65.95, 71.40, 72.50. Just we are trying to have understanding that whether the put call parity theorem is existing or not, considering that से जो ट्रांजैक्शंस अभी हमने किया, हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया. लिसन केयरफुली. एक, हमने सिक्योरिटी सेल किया. सेकेंड, वी borrowed security to cover up the short market. Third, what we have done, we have entered into the transaction for sale put. Fourth, we have entered into the transaction to buy call.
एंड फिफ्थ वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट। देखो सिक्योरिटी सेल करेंगे तो स्पॉट का प्राइस मिलेगा 2384.05, you sell security, you borrow security to cover up the short position, you sell put, then in that case say you will receive less put premium 71.40. Randomly I have taken the exercise price 2400 with no reason. You buy call, so you have to pay higher amount 65.95. So the amount that you will invest is, use your calculator, 2384.05 plus 71.40 minus 65.95. तो आप इन्वेस्ट करोगे, so you invest 2389.50. That is the amount that you invest. Now ये जो इन्वेस्ट करेंगे उसका हमको मेच्योरिटी मिलेगा. You can see that say 1st of February से 24th of February जो एक्सपायरी डेट था तब तक हमको इंटरेस्ट मिलेगा. We are required to purchase a security at the rate of 2400. Of course you can see that हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर किया है, बोरोइंग चार्जेस ऑफ द स्टॉक को इग्नोर किया है. So end result is definitely a loss. It means that say the put call parity theorem is prevailing और arbitrage का opportunity market में नहीं है. Now let us see the second part of the question. From following information you are required to calculate arbitrage is possible, arbitrage if possible. Spot price is 31, exercise price is 30, call premium is 5, put premium is 2, rate of interest is 10%, time period is 3 months. तो ये जो 3 रुपया है वो 5 रुपया हो गया, बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम है. So again we are required to do answer in the same sequence that we have understood. पहले स्टेप पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे whether put call parity theorem is existing or not. अगर वो exist नहीं हो रहा है then in that case we'll understand the transactions for arbitrage. Step number 1. Identifying whether arbitrage exists or not. ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा. अगेन उस पर हम लोग चेक करेंगे पुट कॉल पैरिटी थ्योरम. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. ऑल दीज थिंग्स आर अगेन द सेम व्हाट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या लिखेंगे, पुट प्रीमियम प्लस स्पॉट प्राइस. पुट प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में, 2 रुपया है. स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस इज 31, सो दिस इज 33. राइट हैंड साइड क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस प्लस स्पॉट प्राइस. अच्छा एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस इज 30 डिवाइडेड बाय 1.025 प्लस क्या होगा स्पॉट प्राइस कितना होगा 31. सो 30 डिवाइडेड बाय 1.025 29.2683 plus call premium. I'm sorry. The amount of the call premium is rupees 5. So 34.2683. We understand that again these two values are not matching. It means that say put call parity theorem is not existing. So arbitrage exists. Conclusion.
above two values do not match. So arbitrage exists, ऐसा हम लोग समझते हैं. स्टेप नंबर 2, calculation of arbitrage. I want you to write in the chat box कि इनिशियली हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस में एंटर होंगे, दैट इज ट्रांजैक्शंस ऑन, लाइक हमारे समझने के लिए ऑन 1st of January. राइट दोज ट्रांजैक्शंस इन द चैट बॉक्स. अगेन लॉजिक इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द लॉजिक. यू हैव टू पे द लोअर वैल्यू and you are supposed to receive the higher value. जो एक्सरसाइज प्राइस है वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो उसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. You have to pay this and you will receive this. Listen carefully. To pay 33, okay, because you are going to buy put, you are going to buy security and you will sell call, so you will receive 5. So 33 minus 5 comes to, I think that 27. तो हम लोग क्या करेंगे, 27 रुपीज़ बोरो करेंगे, कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32 रुपीज़, सॉरी 28 बोरो करना पड़ेगा. आई एम सॉरी, वी विल बोरो 28, ऑन सेल ऑफ कॉल ऑप्शन वी विल रिसीव 5, तो हमारा 33 हो जाएगा. उसमें से हम लोग पुट प्रीमियम पे करेंगे और उसमें से हम लोग सिक्योरिटी बाय करेंगे. These are the combinations in which we will enter into the transactions और उसके बेसिस से हमारा आर्बिट्रेज होगा. Write down answer along with me. Calculations of arbitrage, उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखो. Transactions to be entered upon today. उस पर लिखो 1, बोरो रुपीज़ 28 कैसे है जो मैंने आपको समझाया. 2 + 31 दैट इज 33 minus 5 at the rate of 10% for 3 months. Second, sale call and receive call premium rupees 5. Third, buy put and pay put premium rupees 2. Fourth, buy security from spot market. At the rate of rupees 31. ये सारे ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे ऑन 1st of January, जिस दिन हम लोग ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हैं. उसके बाद ऑन द राइट हैंड साइड, आफ्टर 3 months क्या होगा वो देखते हैं. जो हमने बोरो किया उसका क्या होगा, रीपेमेंट. फर्स्ट, repayment of loan, 28 plus 28 into 10% into 3 divided by 12. That comes to 70 paise.
सेकेंड, आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो लायबिलिटी टू कॉल ऑप्शन होल्डर इफ ही एक्सरसाइजेस हिज राइट। आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, right to sell security at the rate of rupees 31, I'm sorry, at the rate of rupees 30, being put option holder, और फिर आपने सिक्योरिटी बाय किया है, सो होल्डिंग 1 शेयर। तो ये 4 चीज होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ arbitrage, in that we will write sale value of security 30 less repayment of loan 28.7, so that will result into arbitrage of 1 rupee 30 paise. Now understand carefully what I am going to speak. देखो अभी क्या होगा, we understand that अगर प्राइस 30 से ऊपर जाएगा तो जिसको हमने कॉल ऑप्शन बेचा है वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, और हमको हमारे पास जो सिक्योरिटी है उसको 30 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। अगर प्राइस 30 से नीचे जाएगा, देन इन दैट केस व्हाट हैपन्स एट से हमने जो हमारा पुट ऑप्शन खरीदा है वो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एंड विद दैट से वी विल बी एबल टू गेट रुपीज़ 30। सो प्राइस 30 से ऊपर जाएगा या 30 से नीचे जाएगा, हमारे पास कितना आएगा, 30 रुपीज़ ही आएगा। दिस इज द वे द आर्बिट्रेज इज कैलकुलेटेड। राइट डाउन अ नोट फॉर द आंसर। We understand that if spot price is less than rupees 30, comma, we exercise our put option and we receive sale value of stock rupees 30 with paragraph write down. If spot price is more than rupees 30, person to whom we have sold call option will exercise his right. Comma, with that we receive
सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक ₹30, प्राइस 30 से ऊपर है तो जिसको हमने कॉल ऑप्शन बेचा है वो एक्सरसाइज करेगा, प्राइस 30 से नीचे है तो हम लोग हमारा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, 30 में तो 30 ही मिलेगा। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड द आर्बिट्रेज कैलकुलेशन। नाउ लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस with respect to the practical quotations that say we have just gathered. We have understood that say ये जो सिचुएशन है उसमें आर्बिट्रेज करने के लिए जो दूसरा सिचुएशन हमने देखा, व्हाट डू वी डू, वी बोरो एन अमाउंट, देन वी सेल कॉल। हम लोग अगर कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो हमको लोअर वैल्यू मिलेगा 65.70, ये एक टोटल आएगा, उसमें से लेस क्या करेंगे, बाय पुट। पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 72.50। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय सिक्योरिटी, कितने में, 2384.05। So we understand that say we have to borrow such an amount so that say we are able to do these two things, 72.5 plus 2384.05, इन दोनों का टोटल आता है 2456.55 minus 65.7, so 2390.85। तो इतना बोरो करेंगे, कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे और सिक्योरिटी बाय करेंगे। Now at the end of the 3 months, that is, I'm sorry, on the expiry of the option, 2400 will be the सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी और इसका रीपेमेंट ऑफ द लोन होगा। दैट इज अ वे वी विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ सो द प्रॉफिट और लॉस टू बी कैलकुलेटेड। 2400 minus 2390.85, so the amount of the interest is ₹9.15। So ₹9.15, principal amount is 2390.85, and time period I am taking 23 days, 24 minus 1. So the break even rate of interest is 9.15 divided by 2390.85 into 365/23 into 100. That comes to 6.07%. तो अगर आपका बोरोइंग रेट 6.07% से कम है तो आपको आर्बिट्रेज होगा। डेफिनेटली योर बोरोइंग रेट कैन नॉट बी सो लो। दूसरा हम लोग यहां पे समझ सकते हैं, जब हम लोग ये कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो हमको एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ेगा। जब हम लोग ये पुट ऑप्शन बाय करेंगे अगेन हमको एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी बाय करेंगे तो ऑल एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमको पे करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्रेक इवन है से दैट इज से डेफिनेटली गोइंग टू से गो डाउन फर्दर, यानी हमारा बोरोइंग का रेट इससे कम हो तो आर्बिट्रेज है, जो कि डेफिनेटली नामुमकिन है। दैट इज द रीजन वी अंडरस्टैंड दैट से arbitrage is not existing in the market and put call parity theorem is existing. I have computed this break even rate of interest considering that से भाई क्या rate of interest होना चाहिए on a higher side
so that say I will be having say no profit no loss situation, because sale value of the security तो fixed है 2400, that is exercise price. यानी इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट का खर्चा मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू बोरो दिस अमाउंट. तो मेरा मैक्सिमम इंटरेस्ट का खर्चा 9.15 होना चाहिए, इसलिए मेरा मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग 6.07% होना चाहिए. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज़्यादा होगा, एंड प्रैक्टिकली वी नो दैट से 6.07% इज नॉट एट ऑल द रेट एट विच यू कैन बोरो. रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आपका रीपेमेंट ऑफ द लोन ज़्यादा हो जाएगा और आपका आर्बिट्रेज नहीं होगा. जब मैंने आपको पहला क्रॉस वेरिफिकेशन समझाया, उसमें मैंने ये सब चीज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें तो अपरेंटली ऐसा हो रहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है से उसका मेच्योरिटी ऑफकोर्स 2400 से एक्सीड नहीं हो रहा था. इन दैट केस ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अगेन द ब्रेक इवन. तो उससे अगर मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो ही आर्बिट्रेज होगा. और यहाँ पे क्या होगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट एट विच यू बोरो, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे कम होना चाहिए. सो दिस इज द वे यू कैन कनेक्ट वॉट एवर द कॉन्सेप्ट दैट से वी स्टडी से प्रैक्टिकली. ओवरऑल जो हमारा वन लाइन अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा है कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. ऐसा नहीं कि वो कुछ भी हो सकता है, both of them are connected, otherwise what will happen, an opportunity of arbitrage means inequilibrium situation will be there in the market. Further, one more small conclusion, we can say something like this, that everybody will buy this, okay. So what will happen, put premium will increase, spot price of the security will increase, everybody will sell call option, so the put premium will fall down. So there will be a point at which the equilibrium will be there. Basically हम लोग कोई भी आर्बिट्रेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपको एक अच्छा चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि आर्बिट्रेज का कैलकुलेशन आर्बिट्रेज समझने के लिए नहीं हो रहा है. आर्बिट्रेज का कैलकुलेशन इसलिए हो रहा है टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो सारा प्राइसेस है ना, इट इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेज. प्राइसेस में इनइक्विलिब्रियम नहीं होगा. You will not be able to make any risk-free gain. You will be able to make a gain only for the risk that you undertake in your investment. अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वेरिन मुझे कोई भी रिस्क नहीं है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक मार्केट के जितना मुझे रिटर्न मिले, देन इन दैट केस आई एम फुलिश. मुझे रिस्क नहीं लेना है और मुझे सुपर नॉर्मल रिटर्न चाहिए. कहाँ से हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. मुझे अगर सुपर नॉर्मल रिटर्न लेना है, then in that case I don't have a choice but to take a risk. This is what's the fundamentally that we understand. तो ये जो सारे प्राइसिंग होते हैं, ये सारे प्राइसिंग का ये एक फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन है.